Good morning, students. Welcome to Hargar Pathshala. Today our topic is Bernoulli principle. As you know, in the previous lecture we had discussed about the streamline flow and turbulent flow, and also the question of continuity, principle of continuity. And then we will discuss the Bernoulli's theorem, principle या theorem बोल सकते हैं, आप लोग theorem भी इसको लिखते हैं. Bernoulli's principle. बेसिकली बर्नौली प्रिंसिपल है क्या, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको एक बात करूं. मान लीजिए मेरे पास ये एक ट्यूब है. I have a tube. Suppose this is a tube, just like this type of tube I have. Now in this case the liquid is flowing. Which one? Your streamline flow of the liquid is there. Liquid is flowing. Which one? Streamline flow of the liquid is there. Liquid is flowing. ये streamlines है हमारी. These are the streamlines. The liquid is flowing. Means we have to define the Bernoulli theorem for streamline flow. Now what will happen here? Suppose its area of friction is A1 and its area of friction is A2. And here the velocity of the flow of the liquid is V1 and here the velocity is V2. Now what will happen when we have to flow the liquid from here to there? What we have to do? We have to pump the liquid from here to there. How to pump? We have to use some device. हम किसी भी तरीके से उसको पंप कर सकते हैं. तो मान लीजिए यहाँ पे pressure of the liquid P1 और यहाँ पे pressure of the liquid क्या है? P2. Pressure of the liquid here is P1 and here is the P2. And here your construction is A1, here is B1 and here is A2, here is B2. Now which type of energy that is involved in this theorem? In this case, there are three types of energy that is involved. One is called pressure energy. Pressure energy is responsible for when we apply the pressure, then the liquid will move. It acquires the kinetic energy. Obviously, it will acquire the kinetic energy. And suppose it will जो हमारा datum level है, यहाँ से ये ट्यूब इतनी ऊंची है और यहाँ से इतनी ऊंची है. Suppose this side is H1, this side is H2. Then there is also the potential energy also. So there are three types of energy that will involved. Energy of liquid की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 कौन सी आ रही है हमारी? प्रेशर एनर्जी. कौन सी आ रही है? प्रेशर एनर्जी. अगर मैं प्रेशर एनर्जी की बात करूं, प्रेशर एनर्जी कैसे आएगी आपके पास? प्रेशर P1. प्रेशर एनर्जी. एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी मींस प्रेशर एनर्जी मींस एनर्जी किसके बराबर होती है? एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन. किसके बराबर होती है? वर्क डन के बराबर. और वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज द वर्क डन. लेकिन वी नो दैट कि प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया के बराबर होता है. तो व्हाट इज फोर्स बराबर है? फोर्स बराबर है प्रेशर इनटू एरिया. व्हाट इज फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. ये प्रेशर का डेफिनेशन है. फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. व्हाट इज F इक्वल टू P इनटू A. तो व्हाट कैन राइट इट है? P इनटू A इनटू S. व्हाट इज A इनटू S? एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट. दिस इज डिस्प्लेसमेंट. एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वॉल्यूम. तो व्हाट इज द प्रेशर एनर्जी इक्वल टू? प्रेशर एनर्जी इक्वल टू P इनटू V. प्रेशर एनर्जी किसके बराबर होगी? P इनटू B. So what is the pressure energy? That is P into B. Pressure energy is equal to P into B. Have you no doubt regarding this? How this will come? Because pressure energy means यहाँ से हम लोग energy देंगे तभी तो ऊपर को लिक्विड जाएगा. एनर्जी कौन कैसे देंगे? प्रेशर अप्लाई करेंगे. अब प्रेशर के कारण जो एनर्जी आएगी उसका नाम होगा प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी में क्या क्या आएगा? एनर्जी बराबर है वर्क डन के बराबर होता है. जो हम काम करते हैं उसको एनर्जी बोलते हैं. वर्क डन किसके बराबर होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है. और फोर्स किसके बराबर होती है? प्रेशर इनटू एरिया के बराबर. प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज P इनटू B हो गया. अगर ये P इनटू B हो गया तो मैं यहां से प्रेशर एनर्जी मेरे पास क्या आ गई? दिस इज द प्रेशर एनर्जी. व्हाट इज कॉल्ड? प्रेशर एनर्जी. प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू P इनटू B. If pressure energy is equal to P into V, then what is the pressure energy per unit mass? Pressure या per unit volume कर लेते हैं. Pressure energy per unit volume. Per unit volume. That is, suppose I have pressure energy per unit volume, that is P into V divided by V. V से B cancel means what is P? Pressure energy per unit volume is equal to P. Is equal to P. What is the pressure energy per unit mass? अगर मास से डिवाइड करते हैं प्रेशर एनर्जी मींस पीवी को किससे डिवाइड करते हैं? मास से. लेकिन हमें पता है कि जो बी होता है बी किसके बराबर होता है? या m अपॉन बी किसके बराबर होता है? m अपॉन बी. रो इज इक्वल टू मास पर इनटू वॉल्यूम. तो ये आ जाएगी p अपॉन रो. मींस जब मैं p अपॉन रो लिखूंगा तो आप एकदम समझेंगे दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास. व्हेन आई विल राइट p सिंपली देन दैट इज प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. व्हाट इज p फॉर प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम? व्हाट इज p बाय रो फॉर pressure energy per unit mass. Similarly, when we apply pressure from here, what will happen now? Then there will be the change in kinetic energy as well as there is a change in potential energy. Means here this principle is based on law of conservation of energy basically. Law of conservation of energy क्या बोलता है कि energy neither created nor destroyed, it can convert from one form to another form. हमने यहाँ से pressure दिया. pressure का कौन सी energy आ गया आपकी? आपकी आ गई काइनेटिक एनर्जी. और दूसरी कौन सी आ गई? पोटेंशियल एनर्जी आ गई. which energy is responsible for kinetic energy and which one potential energy? Change in potential energy, that is the pressure energy. But we can say now, what is the kinetic energy? Here we know, suppose we have some mass here, so kinetic energy is equal to half mv square.
What is the kinetic energy per unit mass? We can say half mv square divided by m. That is m से m कट गया half v square. That is the kinetic energy per unit mass. What is the kinetic energy per unit volume? Kinetic energy per unit volume. Half mv square divided by this is the velocity basically divided by volume. Volume किसके बराबर होता है? m upon rho. m से m कट गया, रो कहां चलेगा ऊपर, half into rho into b square. What is half rho b square? What is half rho b square? This is b को मैं यहां ऐसे कर देता हूं क्योंकि कंफ्यूज मत होना. b for volume, here b for velocity. तो what is kinetic energy per unit volume? That is half rho b square. What is the kinetic energy per unit mass? That is half b square. Now we will say what is the potential energy? Potential energy किसके बराबर होती है? Potential energy is equal to m into g into h. What is the potential energy per unit mass? That is equal to gh. m से m कट गया. What is the potential energy per unit volume? See, that is m g h. What is volume? Volume is equal to mass over density. m से m कट गया, it will be rho into g into h. So rho into g into h is called potential energy per unit volume. This is kinetic energy per unit volume, and this is the which one pressure energy per unit volume, that is P. Means what is the now Bernoulli's theorem basically? Do you got it? Yes. Okay, if you have any doubt, you can call me. Now pressure energy and this kinetic energy per unit mass, yeah, kinetic energy, we can say for streamline flow. How will you define this Bernoulli principle for streamline flow? The sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remains constant. सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं. बट द बर्नौली फॉर एग्जाम में जरूर आता है क्वेश्चन. फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो the sum of pressure energy, kinetic energy and potential energy per unit volume remains constant. You can say here per unit mass also. You can write here per unit mass also. You can write here per unit volume also. But the pressure energy per unit speed, suppose I will say pressure energy per unit, which one here? This is P for pressure energy per unit volume plus kinetic energy per unit volume, that is half rho b square plus your potential energy per unit volume. What is the potential energy per unit volume? That is mgh divided by volume. Volume is rho gh plus rho into g into h, that is equal to constant. ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो. इस चीज को हमने प्रूव करना है. Even we can also write it as p by rho plus half b square plus gh is equal to constant. ये दो स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं एग्जाम में, दोनों ठीक हैं, बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन हैं, चाहे आप इसको बोल दीजिए. लेकिन ये जो क्वेश्चन है this in terms of pressure energy per unit volume, this is in case of pressure energy per unit mass is in this case. This is per unit mass, this is the per unit volume. This remain constant for a viscous fluid, for non-viscous fluid and incompressible fluid as well as for streamline flow के लिए इक्वेशन हमारी एप्लीकेबल होगी. अब विस्कस फ्लूइड क्या होता है, नॉन विस्कस फ्लूइड क्या होता है, और क्या बोलते हैं उसको, इनकम्प्रेसिबल है हमारा वाटर, इनकम्प्रेसिबल वाटर के हम इक्वेशन को अप्लाई करते हैं. We can say P plus half rho b square plus rho gh is equal to constant. Either you can say we have to prove these two equations. How we have to done the proof of now Bernoulli's theorem. So very simple theorem, proof is there that we have to do. How to prove it? इसका वैसे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ तो सिंपल कोई प्रूफ करने वाली चीज नहीं है. क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि आप जो प्रेशर एनर्जी है वो दो एनर्जीज क्रिएट कर रही है. मींस दो एनर्जी को कन्वर्ट हो रही है दो एनर्जी में. प्रेशर एनर्जी कन्वर्टेड इनटू टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज. व्हिच वन? वन इज द काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड इज द पोटेंशियल एनर्जी. दैट विल डू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. नाउ बट विल consider that pressure energy creates, you can write simple proof. There is no need to go for book की बड़ा भारी लंबा लिखना आप लोगों ने. Simple proof can write. Consider that pressure energy creates change in kinetic energy and potential energy. How it will change? Consider the pressure energy creates change in kinetic energy and potential energy. Because जब हम pressure energy यहाँ से apply करेंगे तो there is change in kinetic energy and there is change in potential energy. थोड़ा टाइम कम है और टॉपिक थोड़ा बड़ा है, थोड़ा मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ. तो consider that pressure energy creates change in kinetic energy and potential energy. अच्छा, what is the change in pressure energy? See here pressure is P1, here pressure is P2. हमारे पास जो pressure energy है वो किसके बराबर है? Pressure energy is equal to pressure energy per unit volume. We can say that is equal to pressure energy is equal to P into V.
P into V is the pressure energy. तो यहाँ पे हमारे पास pressure energy क्या रहेगी? P1 minus P2 into B. This is the pressure energy. Now we can write your kinetic energy, change in kinetic energy, change in kinetic energy. The kinetic energy simply that is equal to change in kinetic energy, that is half into m b2 square minus b1 square कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट. और we can write it as half into m को क्या लिखते हैं हम लोग? We can write rho into v b2 square minus b1 square. And what is the potential energy, change in potential energy, that is mgh. We can write it as mgh2 minus mgh1. We can write m into g into h2 minus h1. What about m? M is equal to volume into rho, that is h2, g यहाँ पे आ जाएगा h2 minus h1 आ जाएगा. Now use the principle, जो मैंने प्रिंसिपल आपको दी तीनों को जोड़ देते हैं आपके पास क्या जाएगा? P1 minus P2 into V is equal to, you will got half into rho into V B2 square minus B1 square, and you will got here plus V into rho into G H2 minus H1. See, B is cancelled with B. On all the cases, B is cancelled with B. You will got P1 minus P2 is equal to half into rho into B2 square minus half into rho into B1 square plus rho into G into H2 minus rho into G into H1. Now what we will do, ये जो हमारा H1 वाली टर्म से एक तरफ कर देते हैं और H2 वाली टर्म जो दूसरी है 2 वाली टर्म उनको एक तरफ कर देते हैं इस तरफ से हमारे पास हो जाएंगी. We will got, what we got, see the case, you will got P1 plus half into rho into B1 square plus rho into G into H1 is equal to P2 plus half into rho into V2 square plus rho into G into H2. See, this is the case. If you see, if we write this as, how can we write this as P1 plus half into rho into V square plus G into H, rho into G into H, that is equal to constant. Or this is your Bernoulli's theorem. Even you can write this as in terms of divided with the rho. Rho से इसको divide करते हैं, you will got P1 by rho means in terms of this also you can write divided with the rho half into B square plus GH is equal to constant. This is the case for pressure energy per unit mass. This is the case for pressure energy per unit volume. इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं. तो देखिए इसको हम we can say this as a gravitational head. This is called your velocity head and this is called pressure head. Pressure head plus gravitational head. This but we can say this as pressure head. And this is the gravitational head. This is the which we can say velocity head, and this is called the gravitational head. The sum of these three, that is also equal to a constant gravitational head, or this is your Bernoulli's theorem that we have proved. Now what will happen, एक स्पेशल केस यहाँ पे करते हैं. मान लीजिए ये जो हमारा लेवल यहीं पे है, मान लीजिए यहाँ पे लेवल है, तो हमारा h1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. या हमारी जो ट्यूब है that is state, tube is state. If tube is state, then h1 is equal to h2 हो जाएगा. तो हमारी Bernoulli theorem क्या रह जाएगी? What is the Bernoulli theorem? Then we will got P plus half into rho B square, that is equal to constant. If h1 is equal to h2, that is state horizontal level में. यहाँ से क्या चीज समझ आ रही है आपको? मान लीजिए ये है हमारा 50 और ये भी कितना है 50, तो टोटल कितना हो कांस्टेंट 100. अब मान लीजिए क्या हुआ कि वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, प्रेशर है क्या 40, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ये कितना आ जाएगा काइनेटिक यहाँ पे 60. मींस रो तो कांस्टेंट है, यहाँ पे b क्या हो जाएगा? बढ़ गया. मान लीजिए b इंक्रीजेस देन प्रेशर डिक्रीजेस. मींस बर्नौली थ्योरम की एक बहुत बड़ी हमारे पास रिजल्ट निकला. सी इफ प्रेशर इंक्रीजेस, if velocity increases, then pressure decreases, vice versa, and vice versa. Means अगर आपका वेलोसिटी बढ़ जाती है तो प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है. और अगर आपका प्रेशर क्या बोलते हैं बढ़ जाता है, मींस ये वेलोसिटी डिक्रीज करे तो प्रेशर बढ़ जाएगा. इसके साथ कुछ एप्लीकेशन हम लोग करते हैं जल्दी में. बर्नौली थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, कुछ applications of Bernoulli theorems that we have to do. No, what are the applications? I will do because the time is less. That's why we have to do this very small time. Suppose we have it train and man. Suppose train and man for example करते हैं.
अब ट्रेन एंड मैन का क्या एग्जांपल, मान लीजिए यहां से ये ट्रेन जा रही है ऐसे, ये प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर एक आदमी खड़ा है यहाँ पे, ये ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर रही है, यहाँ से, दिस इज ट्रेन और दिस इज ट्रेन, दिस इज प्लेटफॉर्म, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, इसे अब यहाँ से क्या होगा, जब ट्रेन आएगी तो यहाँ से एयर ब्लोन होगी, उसके साथ एयर ब्लोन होगी तो यहाँ पे जो एयर की वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी, और जैसे दूर होगा कोई दूर, पीछे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ एयर, मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है v1, यहाँ पे वेलोसिटी है v2. तो in this case, see, when the train will move, the particles of this air that will move with the train, तो यहाँ पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, v2 is greater than v1. But about the pressure here, what about the pressure here? यहाँ पे प्रेशर लेस है, p1 is the pressure, ये इस आदमी को ऐसे लगेगा प्रेशर, और यहाँ पे प्रेशर कितना है, p2 है. अब p2 बड़ा है किससे, p1 से. क्यों बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर क्या होता है ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी आई विल एक्सप्लेन p1 प्लस हाफ रो b स्क्वायर प्लस रो gh इज इक्वल टू gh तो यहाँ नहीं होगा, p2 प्लस हाफ इंटू रो b स्क्वायर, क्योंकि इस केस में हॉरिजॉन्टल है ये दोनों. तो आप यहाँ पे देखिए b1 स्क्वायर हिट इज b2 स्क्वायर, यू सी इन दिस केस इफ p बढ़ेगा तो b क्या होता है, कम हो जाएगा. प्रेशर और वेलोसिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है. तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा, अब यहाँ से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, यहाँ से जैसे मैं खड़ा हूं तो मैं कहीं नहीं हिल रहा हूं, क्योंकि मुझे इधर से प्रेशर बराबर लगा, इधर से बराबर लगा, इधर से बराबर लगा, सब जगह से प्रेशर इक्वल एक्सर्ट हो रहा है. जब इक्वल लग रहा है तो मैं जब यहाँ से इक्विलिब्रियम में हूं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रेशर कम है और ये ज्यादा, बताओ किधर को जाएगा आदमी फील करेगा कि मुझे क्या लगा अंदर की तरफ, वो धक्का लगा और वो ट्रेन के जाके साथ जाके क्या होता है, स्ट्राइक होता है. वो सोचेगा किसी ने मुझे पीछे से क्या कर दिया, पुश कर दिया, क्योंकि इधर का प्रेशर कम है और इधर का ज्यादा है. तो दिस इज द केस कि कभी भी जब भी ट्रेन जा रही है तो ट्रेन के बिल्कुल प्लेटफॉर्म में उसके कोने के ऊपर खड़े नहीं होना, क्योंकि पीछे से क्या लगता है, धक्का लगता है. कहां पे बर्नौली प्रिंसिपल अप्लाई हो सकता है. दूसरी बात, रूफ ऑफ हाउस या रूफ ऑफ हट्स, और हमने हट्स बनाई हुई है, हट्स हमारे पास सी द केस, हट्स यू नो गांव में होती है हट्स, जैसे हट्स बना दी है हमने, यहां से हट्स बनी हुई है. अब क्या होगा कि व्हाट विल हैपन, जो एयर यहां से चल पड़ी, यहां से एयर आ रही है, तूफान आ रहा है, जब तूफान यहां से आएगा तो ऐसे ऐसे इसकी स्ट्रीम लाइन जाएगी, यहां से इस तरह से जाएगी, और यहां पे सीधे निकल जाएगी, ऐसे यहां सीधे निकलेगी. तो मुझे बताइए, जब यहां हम ए पॉइंट के ऊपर, यहां पे हमारा बी पॉइंट है और यहां भी ए पॉइंट है, यहां बी पॉइंट है, मुझे बताइए किस केस में डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, एयर. इस केस में डिस्टेंस जो है वो कम ट्रैवल करना पड़ रहा है, यहां पे डिस्टेंस जो है वो ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, लेकिन एक सेकंड में यहां से यहां पहुंचना है एयर ने आकर के. अब डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस ज्यादा है, किसको ज्यादा दौड़ना पड़ेगा, ये लाइन ज्यादा वेलोसिटी होगी कि इस लाइन की ज्यादा वेलोसिटी होगी, नीचे वाली लाइन की वेलोसिटी कम होगी. जैसे मान लो हम सर ऐसे दौड़ रहे मान लीजिए, और हमने एक सेकंड में दोनों ने यहां पे आकर पहुंचना, तो ये इस वाले को ज्यादा दौड़ना पड़ेगा और इस वाले को कम दौड़ना पड़ेगा. ये धीरे धीरे आएगा और ये फास्ट, अगर एक और हो तो उसको यहां आना है सेम टाइम में 1 सेकंड में सभी ने आना, इसको तो सबसे ज्यादा दौड़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा देखिए, लेकिन एक सेकंड में एयर ने यहां से आना है, क्योंकि हमारा क्या बोलता है, जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या बोलती है हमारी, कि अगर यहां से एयर जो यहां पहुंचेगी आकर के एक सेकंड में, यहां से यहां भी उतनी पहुंचेगी आकर के. तो व्हाट विल हैपन हियर, यहां से डिस्टेंस ज्यादा है, अब डिस्टेंस ज्यादा है तो इस चीज को फास्ट आना पड़ेगा. तो यहां वेलोसिटी मान लीजिए यहां v1 है, यहां v2, बताइए ये v1 इज ग्रेटर देन v2, व्हाट विल हैपन हियर, प्रेशर इज p1, हियर प्रेशर इज p2, व्हिच प्रेशर इज मोर, p1 इज लेस देन p2. अब क्या होगा, यहां से क्या होगा, प्रेशर इधर को लग रहा है, इसको नीचे को कौन लगा रहा है, p1 कहां को लग रहा है, नीचे, और p2 कहां को लग रहा है, ऊपर, लेकिन p2 बड़ा है किससे, p1 से, हट का हो जाएगी, उड़ जाएगी, ये इट विल ब्लोन, ऊपर से तूफान आएगा और हट उड़ जाएगी. लेकिन अगर हम यहां से एयर के लिए एयर यहां पे थोड़ी एयर जाने के लिए जगह रखेंगे, तो नीचे से एयर ऐसे ब्लोन करेगी और इक्वल इसमें प्रेशर लगेगा और आपकी हट कभी भी नहीं उड़ेगी. द केस फॉर रूफ ऑफ हट्स. उसके बाद जो एरोप्लेन होता है, एरोप्लेन बर्नौली प्रिंसिपल के ऊपर उड़ता है. एरोप्लेन की बात करें, एयरफॉइल की बात करें, एयरफॉइल, हम एयरफॉइल कैसे लेते हैं, ऐसे बनाते हैं और इस तरह से करते हैं, ऐसे. दिस इज आवर एयरफॉइल. अब यहां से एयर आएगी, सेम प्रिंसिपल है, ये एयर आ रही है, ये क्या है, स्ट्रीम लाइन, यहां से एयर ऐसे जा रही है. अब यहां पे पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट क्या है, बी है. अब ये यहां से आगे को जाएगी मान लीजिए, तो इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, ज्यादा, इस केस में डिस्टेंस ट्रैवल क्या है, कम है. तो यहां पे वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे वेलोसिटी लेस, v1, here is suppose v2, in this case v2 is greater than v1, then pressure p2, and here is pressure suppose p1, what about pressure p2 is less than p1, what will happen now, जो एयरफॉइल है उसको क्या लगेगी, ऊपर की तरफ को लिफ्ट क्यों लगेगी, भाई इट विल मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल लिफ्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, भाई इट विल लिफ्ट. अच्छा मान लीजिए मैं एयरफॉइल ऐसे बना देता, सपोज करिए ऐसे बना देता, सपोज दिस एयरफॉइल, व्हाट विल हैपन, यहां से एयर ऐसे जाती, यहां से भी एयर ऐसे जाती, दोनों को सेम डिस्टेंस है, प्रेशर सेम रहता है, ये इसमें लिफ्ट नहीं होती. लेकिन इस केस में हमने इसको इस ऐसी स्ट्रेट लाइन से क्यों दिए नीचे की तरफ को,
क्योंकि यहां से एयर जो निकलेगी उस केस में उसकी वेलोसिटी कम होगी, यहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, सेम बर्नौली प्रिंसिपल यहां पे अप्लाई होगा। दिस इज द केस फॉर एयरफॉइल। अनदर एप्लीकेशन आई विल डिस्कस विद यू, दैट इज सपोज योर स्प्रेयर। अब स्प्रेयर में क्या होता है? स्प्रेयर क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसे पाइप ले लेते हैं और उसमें ऐसे नोजल निकाल लेते हैं और यहां से स्प्रे होती है चीज, जैसे कोई भी चीज स्प्रे होगी, और यहाँ पे हम लोग मान लीजिए किसी भी तरीके से इसको पंप करते हैं, एयर इसको ब्लॉन करते हैं इसके अंदर, और यहाँ से हम एक पाइप लगा देते हैं नीचे को, और यहाँ पे हम एक बोतल रख देते हैं, मान लीजिए दिस बोतल में हमने क्या लगाई हुई है, यहाँ पे ये हमने बोतल में पाइप लगा दी है इस तरह से, ये पाइप नीचे, इसमें क्या भरा हुआ आपका लिक्विड भरा हुआ है। अब इस केस में क्या होगा, कैसे बर्नौली प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, जब हम यहाँ से इसको दबाएंगे तो यहाँ से एयर ब्लॉन होगी, आप इसमें कोई लिक्विड नहीं भरा हुआ है एयर, लेकिन यहाँ पे इस पाइप में क्या भरा हुआ है, यहाँ पे लिक्विड भरेगा। कैसे? जब हम लोग यहाँ से इसको दबाएंगे तो यहाँ से एयर ब्लॉन होगी, जब यहाँ से एयर ब्लॉन होगी तो उसकी वेलोसिटी होगी ज्यादा, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा कम, लेकिन नीचे प्रेशर क्या है आपका ज्यादा है, लिक्विड कहाँ को फ्लो करेगा, ऊपर को करेगा। जब ऊपर आएगा एयर यहाँ से आएगी और लिक्विड नोजल से बाहर निकल जाएगा। जैसे हम लोग स्प्रे डालते हैं अपनी बॉडी के ऊपर डालते हैं, इवन जो हमारे हेयर मेकर होते हैं, हेयर जो मेकर नहीं बोलते हैं, हेयर कटिंग वाले होते हैं, उन्होंने स्प्रे रखा होता है ऐसे स्प्रे डालने के लिए, तो इस तरह से स्प्रे का हम लोग यूज कर, परफ्यूम की बोटल्स होती हैं, उसमें हमारा बर्नौली प्रिंसिपल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इवन बर्नर में भी हमारा होता है, बर्नर में भी क्या होगा, जब हम उसमें थोड़ी सी ओपनिंग रखते हैं, वहां से एयर ब्लॉन होगी, प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और ऊपर को लिक्विड जो एयर है गैस के साथ एयर मिक्स होकर ऊपर जाएगी और आपका बर्नर जल जाएगा। इवन वन मोर एग्जांपल, देयर इज अ मैग्नेस इफेक्ट। जो क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, मैग्नेस इफेक्ट हम इसको बोलेंगे, मैग्नेस इफेक्ट। व्हाट इज मैग्नेस इफेक्ट? मैग्नेस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ बॉल, स्पिनिंग ऑफ बॉल। अब स्पिनिंग ऑफ बॉल क्या है? इट इज आल्सो बेस्ड ऑन बर्नौली थ्योरम। इवन हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये यहां से हमारे पास ये ग्राउंड है और उन्होंने यहां से बॉल फेंकी, तो बॉल यहां पड़ेगी, तो ऐसा लगेगा क्रिकेटर को कि बॉल जो है यहां उन्होंने फेंकनी है, क्रिकेटर एज्यूम करेगा यहां पड़ेगी, पूछता बॉल यहां पड़ जाएगी, यहां जाके पड़ जाए, ड्यू टू दिस व्हाट इज द मैग्नेस इफेक्ट दैट आई विल शो यू। या तो बॉल इधर को डाइवर्ट होती है, तो बॉल इधर को जाती है, इस तरह से स्पिन होती है बॉल। अब ये कैसे होता है, हाउ इट विल हैपन? सी द केस, आपकी ये बॉल है, मान लीजिए जब ये बॉल है आप इसको ऐसे स्पिन कर दो, मान लीजिए इस तरह से आपने क्या कर दिया, इसको स्पिन कर दिया, तो बॉल कैसे घूम रही है आपकी, ऐसे घूम रही है, आपने कैसे किया, इसको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन किया। जब एंटी उधर से आ रही, मान लो एयर इधर से आ रही है, आपकी एयर ब्लॉन होगी, इस तरफ से आ रही है, जब यहां से एयर आ रही है तो व्हाट विल हैपन हियर, तो ये आप एयर ऐसे आएगी, ऐसे निकल जाएगी, ऐसे निकल जाएगी, यहां से ऐसे निकल जाएगी स्टीम लाइन, यहां पर भी हमारी स्टीम लाइन ऐसे इधर को बढ़ेगी। लेकिन इस केस में देखिए, किस केस में मान लीजिए यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है v1, यहां पे वेलोसिटी v1, और ये जो हमारे पास बॉल है इसकी जो वेलोसिटी है, सपोज करिए इस तरफ को डेल्टा v और इस तरफ को डेल्टा v है, तो मुझे बताइए यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा v1 माइनस डेल्टा v, और यहां पे क्या हो जाएगा v2 प्लस डेल्टा v। किसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पे वेलोसिटी बढ़ गई और यहां पे वेलोसिटी कम हो गई। यहां पे वेलोसिटी क्यों कम हुई, क्योंकि आप इधर को आ रहे थे और हम इधर को जा रहे हैं, बॉल को ऐसे स्पिन किया, तो यहां पे वेलोसिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। जब यहां वेलोसिटी बढ़ गई, यहां प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस, प्रेशर इज लेस, हियर प्रेशर इज more, P1 is more and P2 is less. What will happen now? जब ये ग्राउंड के ऊपर ऐसे स्ट्राइक करेगी ये बॉल आकर के, तो प्रेशर कहाँ है, यहाँ लेस है और यहाँ ज्यादा, तो ये नीचे को दबेगी। जब ये नीचे को दबेगी, ऐसे दब जाएगी, तो यहाँ पड़ने की बजाय कहाँ पड़ जाएगी, आगे पड़ जाएगी, यहाँ पड़ जाएगी, ऐसे पड़ जाएगी। अब बैट्समैन ने तो यहाँ पे शॉट लगाना था, इससे वो रिसीव हो जाएगा, और ये यहाँ पड़ने के बाद ऐसे उछल के बाहर निकल जाएगी, स्विंग हो जाएगी आपकी बॉल। दूसरा केस, अगर इसी केस को हम ऐसे लेते हैं, ये देखिए ये हमारे पास बॉल है, अब एयर ऐसे बिलोंग कर रही है, इधर से बिलोंग कर रही है, मान लीजिए इस तरफ से एयर बिलोंग कर रही है, लेकिन हमने बॉल को कैसे घुमाया, हमने बॉल को घुमाया क्लॉकवाइज। कैसे, ये पहले क्लॉकवाइज था, अब कैसे घुमा दिया हमने इसको, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया इसको, इस तरह से घुमा दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, जब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ पे ये जो है ये कट जाएंगी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हियर द वेलोसिटी इज लेस, v1 इज लेस एंड हियर v2 इज मोर। व्हाट विल हैपन नाउ, प्रेशर का इफेक्ट कहां को, ऊपर को होगा। जब ऊपर को होगा तो बॉल यहां पड़ने की बजाय कहां जाएगी, आगे जाएगी। ओके, इस तरह से अगर हम बॉल को ऐसे घुमा दें, इस तरह से एक्चुअली बॉल रफ होनी चाहिए बेसिकली, तब स्पिन होगी, बॉल रफ होनी चाहिए, तब तो ग्राउंड के साथ वो टच होगी। अब हमने बॉल को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, जब हमने बॉल को ऐसे घुमाएंगे तो बॉल इधर को बाहर निकल जाएगी। अगर हम बॉल को ऐसे घुमा देंगे तो क्या होगा, बॉल इस तरफ को बाहर निकल जाएगी। मींस बॉल को ऐसे घुमाएंगे, अगर हम ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से पहले सीधा पकड़ के घुमाएंगे सीम्स, फिर हम उसको ऐसे भी घुमाते हैं, इस तरह से और इस तरह से भी घुमाते हैं। जो बॉल ऐसे इस तरफ को घुमा दो या बॉल को इस तरफ को घुमा दो, तो दैट इज ऑल बेस्ड ऑन व्हिच वन योर बर्नौली प्रिंसिपल। इसकी कुछ एप्लीकेशंस है यहाँ पे, जब हमारा लिमिटेशंस है,
जब हमारी ये पाइप है, मान लीजिए पाइप इस तरह का इसका क्रॉस सेक्शन है, तो जो हम लोग यहाँ डेंसिटी लगभग सेम ले रहे हैं, तो डेंसिटी में भी चेंज आएगा। दूसरा, यहाँ से जब हमारी स्टीम लाइन ऐसे फ्लो कर रही है, तो जब ये फ्लो करते काइनेटिक एनर्जी आती है, थोड़ी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो एनर्जी टोटल कंजर्व नहीं होगी, थोड़ी सी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, हीट एनर्जी में चली जाएगी। हम यहाँ क्रॉस सेक्शन में वेलोसिटी, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी भी बन रही है, होता है डिफरेंट पार्टिकल हैव डिफरेंट वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, तो हमें उसका मीन लेना पड़ेगा। उसका क्या लेना पड़ेगा? मीन लेना। दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो दिस इज बर्नौलीज principle and its application, or this might be asked in the examination, these applications. To be alert for examination. Thanks, have a nice day.